I now request Pratishta Malhotra from our Cineblitz team to please come up on stage and greet the lovely Huma Qureshi. But most of all, thank you to Huma, who has given us a beautiful cover. I'm sure you all will agree. And I just want to share a bit about this issue. It's our New Year special. It's the first issue of 2015. And we went with a theme, you know, it's looking back, looking forward. So we didn't want to go with the same typical... Diva is a very tricky word, yeah. Matlab, suddenly you say diva and people say, acha, attitude and all. No, but thank you so much. Thank you. Thank you, Pratishta. Thank you, the entire team of Cinema. Thank you, Munna, for giving, for making me look so pretty. The day I have to share this, okay? The day we shot the cover, I had taken a 4.5-hour flight and I had come. And मैं इतनी थकी हुई थी, मतलब कहते ना full 12 बजे हुए थे. और मुझे लग रहा था कि आज तो पता नहीं, you know, first time shooting a cover for Cineblitz, I really wanted to look very nice, but I was so tired. But really hats off to the entire team, to Munna, who within 4 hours knocked out the entire photo shoot and has made me look so nice. So thank you so much for giving me this opportunity. कहते हैं जनवरी में लोग new resolutions बनाते हैं और पुरानी आते छोड़ के कुछ नई चीजें adopt करते हैं. I'm glad you've adopted me in that sense. Thank you so much. I think the pleasure was entirely mutual in this case, and we have a beautiful spread. I request everyone to really pick up that magazine, go through it, and enjoy the pictures. More than that, I must say, the wisdom, I should say, that Huma has shared in her interview. A beautiful speaker. She has shared very candid insights about her career, her growth in this industry, and I really think someone like her deserves to be applauded, deserves to be supported, because I really see a long future and a very good, strong future ahead for her. So thanks, ladies and gentlemen. Huma, you'd like to add something more? Or? I just want to say thank you once again. It's not easy being an actor. Yeah. You always have to, I guess, keep reinventing yourself. As far as fashion sense is concerned, yes, I'm glad you've noticed. It's a decision. It's a conscious effort to look more fashion forward every single time you step out. I'm the kind of girl, I'm very happy in my pajamas and flip-flops. But I guess being an actor, it's a huge responsibility. People are looking at you, I guess, looking to get inspired by how you sort of turn up for various things. And I'm glad I have a great team now who support me. And like I always, I'm a work in progress. I always want to keep bettering myself, whether it's my movies or it's my fashion sense. And thank you, Cineblitz, again. It's a great start to this year. And I hope that we continue this association. Thank you so much. Thank you. Thank you, Huma. Huma, would you like to share your thoughts about our magazine and about the shoot? Well, I just did, no? I mean, I just said what a wonderful creative team. I mean, Pratishta is a great person to have. I mean, it didn't seem like an interview, actually. We were just two girls having a chat, and I guess मैंने जो बहुत कुछ ज़्यादा उसको बोल दिया, मतलब, you know, then I like, अरे मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, तो मैं देख ये सब मत लिखना, please, people will think I know it all. But no, it was really nice chatting with her because I just felt I was talking to a friend. It didn't seem like an interview, and I think that just flowed. And of course, like I said, in 4.5 hours with Munna's amazing lighting, he just managed to make me look so pretty. And we were just done with the entire shoot, and the result is there for everyone to see. And I think kudos to the whole team who managed to pull it off, because we decided, a week ago that we were going to shoot the cover. So we hardly had any time to prepare. I was a little nervous because I'd never, worked together with this whole team, but I think it looks fabulous. Thank you. Thank you. Thank you for enlightening us on the magazine. We would now like Huma and Nicola and the photographer Munna S, who created this beautiful cover, to unveil. Munna's friendship also thanks to Cineblitz.
Okay. We also want the sponsors, Hansini Jewels, and also the Shisha Sky Lounge Gold, Mr. Gaurav Agarwal and Mr. Abid. Mr. Abid Ali, sorry. Yes, please. Thank you. It's a fabulous cover. We now request Huma to autograph. May we please have हाय हुमा, आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम. आपके लेफ्ट में या मेरा सवाल है कि पहला फोटो शूट याद आता है आपको, जब पहली बार आपने किसी कवर के लिए या खुद के प्रोफाइल के लिए फोटो शूट किया हो, कराया हो? पहली बार जिंदगी में जब मैंने एक फोटो शूट कराया था, तब मैं दिल्ली में थी एंड थिएटर करती थी, और किसी ने कहा था कि एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, यू नो, पिक्चर्स होनी चाहिए एक्टर के पास, आपको फिर अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजना होगा, तो कुछ तो पिक्चर्स होनी चाहिए. तो एक मेरे दोस्त थे, फोटोग्राफर, ही वाज स्टडीइंग टू बी अ फोटोग्राफर, सुशांत, ही इज नो मोर नाउ, ही वाज स्टूडेंट एट FTI, सो ही हैड बॉट अ न्यू कैमरा, सो वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट. सो अंसल प्लाजा करके एक मॉल है, हम लोग ने उसके एम्फी थिएटर में बहुत सारे पिक्चर्स खींचे थे. आई स्टिल हैव दोज पिक्चर्स, आई कीप देम बिकॉज सुशांत इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड दोज वर पॉसिबली हिज पिक्चर्स, एंड द फर्स्ट टाइम आई एवर गॉट क्लिक्ड. बट वो उसमें मैं इतनी
खराब लग रही थी बिकॉज देयर वाज नो मेकअप. मैंने खुद अपना मेकअप किया था, मैं ऐसे कुछ घाघरा स्कर्ट और एक ब्लैक टॉप पहना हुआ था एंड आई वाज लुकिंग रियली बैड. और मैंने वो एक्चुअली पिक्चर्स काफ़ी लोगों को भेजी और अब मुझे इतनी शर्म आती है सोच के कि व्हाट वाज आई थिंकिंग कि ये पिक्चर्स देख के किसने मुझे बुला भी कैसे लिया. बट आई गेस यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स and that was my first step into getting a professional shoot done. Rohan Shrestha was the first guy I think I did my first professional folio with, which was very late. मतलब I didn't have good pictures for the longest time. मुझे हमेशा लगता था कि मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है. So in all my pictures I always keep looking at my nose. कि my nose is not looking nice. So I was strangely for an actress, I was quite conscious of getting pictures clicked. But now, of course, we have good photographers like Rohan, like Munna, like Abhay Singh, who I've worked with, and they just manage to just capture some really beautiful images and some beautiful moods. जब मैगजीन थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी तस्वीरें काट के बचपन में इंसान लगा लिया करता था कमरों में. या कभी कुछ ऐसी याददाश्त है, कभी आप किसी पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाते थे? बचपन में मैंने तो हमेशा कहा है, I've been a huge माधुरी दीक्षित फैन, तो उनके बहुत सारे पिक्चर्स मेरे पास हैं, अभी भी हैं. इनफैक्ट उन्होंने एक फिल्म में हम आपके हैं कौन में एक ग्रीन और वाइट कलर का लहंगा पहना है. तो आई हैव अ पिक्चर ऑफ मी ऑल्सो एट सम वेडिंग वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम आउटफिट बिकॉज मैंने बहुत जिद की थी कि आई वांट टू वेयर व्हाट शी इज वेयरिंग काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई हैड अ ह्यूज फैसिनेशन विद हर, द वे शी डांस्ड, द वे शी एक्सप्रेस, जैसे वो एक्सप्रेस करते थे अपने फेस से. मतलब डांसिंग तो वो इतनी अच्छी करती थी पर उनका फेस अलग डांस कर रहा होता था. तो शी इज ऑलवेज बिन समवन आई हैव ऑलवेज लव्ड एंड एडमायर्ड. हेलो, हाय हुआ मैम. दिस इज़ हर्षा फ्रॉम TV9 मराठी. मैम, हाल ही में आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और नेक्स्ट आपकी बदलापुर जो फिल्म आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. अवार्ड मिलना हमेशा अच्छा लगता है, चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो. ये फिल्म मैंने की थी पिछले मतलब इसी टाइम लास्ट ईयर रिलीज हुई थी. तो इट्स वेरी नाइस दैट इवन आफ्टर अ ईयर लोगों को आपका काम याद है, आपकी परफॉर्मेंस याद है. मुझे लगा लोग भूल गए होंगे, बट आई थिंक एक अवार्ड्स, रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. रिवॉर्ड मतलब जनता ने आपकी पिक्चर देखी, टाइम निकाला अपने जीवन से आपकी फिल्म देखने के लिए. एंड अवार्ड इज ऑल्सो गुड वे बिकॉज आई फील इंडस्ट्री गेट्स टुगेदर. आपके जो कॉलीग्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो इंडस्ट्री के बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा तुमने अच्छा काम किया. सो इट ऑलवेज फील्स नाइस टू गेट एन अवार्ड. ऑफ कोर्स Dineshki has been a very special film, I've always said. मुझे बड़ा मजा आया काम करके. Of course मेरी favorite माधुरी दीक्षित थी उसमें. There was Naseer sir, there was Arshad, a fantastic director like Abhishek Chaubey, a producer like Vishal Bhardwaj. तो मुझे हमेशा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है. तो उनके साथ काम करके थोड़ा मैं भी सीख जाती हूँ और उनके बीच में मैं भी थोड़ी ठीक ठाक लगती हूँ. So this win, I think they deserve it more than me, really. मैं तो भाई को बोली देखो थोड़ी तैयारी कर लो. I told him, no, I mean, of course, Saqib and I both are very excited. It's a very interesting film. But both हम दोनों बहुत ही competitive हैं. तो of course प्यार बहुत है हम दोनों में. But अब मज़ा आएगा. Huma, hi. Here. I just happened to read one of your articles where you have said that you're not apologetic about your appearance. So could you just brief us about in what way did you mean that? यार मैं ना दिल्ली की लड़की हूँ और आई वेंट टू अ कोएड स्कूल है. उसके बाद मुझे पेरेंट्स ने एक गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया. तो थोड़ी सी अंदर से फेमिनिस्ट हूँ. तो मुझे लगता है कि अगर एक्चुअली फेमिनिज्म की बात ही नहीं है. एक्चुअली द थिंग इज आई थिंक एवरी गर्ल शुड बी प्राउड एंड हैप्पी विद हु शी इज. एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर कि एक तरह की चीज़ें करनी चाहिए. बचपन में हम जैसे छोटे थे तो सब बोलते थे कि खाली साइंस लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे साइंस लेते हैं. तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं है. लाइक एक भेड़ चाल सी है इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड आई थिंक दैट्स रियली रॉन्ग. आई थिंक सिमिलरली इन एज फार एज ब्यूटी इज कंसर्न, एज फार एज विमेन आर कंसर्न, देयर इज दिस कॉन्स्टेंट प्रेशर टू लुक लाइक क्लोन्स ऑफ ईच अदर. कि सब ब्यूटी यही है, केवल सिर्फ एक यार्डस्टिक है ब्यूटीफुल दिखने का. सबके बाल एक जैसे होने चाहिए, आप एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसा बॉडी शेप हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर वेरियस थिंग्स व्हिच इज नॉट राइट. Every woman is beautiful and I've always stressed, you should not let anyone make you feel not beautiful because that's just not right, and we should not give in to this kind of unnecessary pressure. So do
we get to see you sooner or later having a zero size figure? But why? You don't like how I look? You am think I happy, don't look nice? But You want me to die starving? You want to see me anorexic कि मेरे बाल वाल झड़ रहे हों? I must be like, you know, putting a finger down my throat and throwing up all the food. Why? Why do you want to become unhealthy? Of course, if you ask me a question, will I say you play an athlete one day? For sure, I would love to. If you ask me a question in some film, will Huma Qureshi play a supermodel? I would love to. I would, for a character, for a role, I would love to put myself, my body through a process where I can completely transform myself. But I'm very happy with how I look. Yeah, all the boys also tell me I look quite nice. So problem क्या है? so would you mind wearing a swimsuit with this body? Are you a boy wearing a No. wig? I'm just इनके सवाल थोड़े. हुमा, तमारा के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी लड़की है, क्या करती है, प्रमोशन में भी बहुत कम नजर आ रही है बदलापुर के। तमारा तो एक थी डायन में थी, एक थी डायन। आप जी, आपको इतना अच्छा लगा, आई एम ग्लैड आपको आज तक याद है। बदलापुर में मेरे कैरेक्टर नाम जिमली है और बदलापुर बहुत ही स्पेशल फिल्म है। मेरे एक बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, श्रीराम राघवन, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जब से मैंने उनकी एक हसीना थी, जॉनी गद्दार फिल्में देखी हैं, आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम। सो जब मुझे उन्होंने बुला के ये कैरेक्टर, ये फिल्म नरेट की, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि रियली, मतलब आई हैड टू लिटरली पिंच माई सेल्फ। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इट्स क्वाइट एजी, इट्स क्वाइट डार्क। इट्स अ स्टोरी अबाउट टू मेन played by Varun and Nawaz, and of course there are many other characters and 5-6 very interesting characters. उसमें से एक मेरा है जिमली का। And मैं सिर्फ इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि Shriram really put me outside my comfort zone, and I think it's a character Jimli that I possibly शायद मैं उनके वजह से ही मैंने ये किया। I don't think I could have put myself through playing such a difficult character. मतलब एक दिन तो हमारा जब भी shooting होती थी, I remember I broke down literally. It was so intense, and I was so jolted literally. तो उसमें अपना मज़ा भी है और उसमें डर भी लगता है, क्योंकि you placing so much trust in a filmmaker, in a film. But I really had a wonderful cast and a wonderful director. So I just hope audiences also really enjoy how much hard work we put into that film. Hi Huma, I'm to your Huma, which has been your favorite Cineblitz cover before you joined Bollywood, or maybe even now? Which has been your favorite? Mine. And if I have to ask you, not you, Mine. on the Mine. Okay. क्या बात कर रहे हैं? Oh, Wikipedia is not always right. Just the way not everything you read is right. Huma, hi. Here. Hi. Huma, just wanted to know कि we heard that you and Sakib are doing apparently Oculus movie. Is it true? Well, अभी किसी ने सवाल पूछा. Yes, it is true. We've been offered that film. It's a very exciting film, and let's see how it goes. It's too early to really make an official comment about it. But to play in a film with Sakib would be very exciting. हम लोग बहुत ही दोनों different actors हैं और बहुत ही different energies है हमारी, हम दोनों बहुत ही different इंसान हैं, तो एक दूसरे के साथ काम करने में मजा तो बहुत आएगा। Huma, here. Just taking my colleague's question forward, you've been part of movies with great, bold, brave subjects. So, if the script demands, would you like to don a bikini on screen? It's a very unfortunate question you're asking me. It's like saying, if the role demands, would I kill somebody? If the role demands, will I ride a car? If the role demands, will I like to scuba dive? I mean, the answer is that's the same answer I'll give to you. I don't think the desire is in my mind, it's definitely in yours. Thank you, everybody. Special thanks. Babu's done. Gaurav. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नीचे बैठो। शैडो ना आप 3 पकड़े हो, 2 पकड़ो, एक साथ एक जन पकड़ो ना आप, या तो आप सब पकड़ लो सर। आ जाइए, सब पकड़ लीजिए।
अलग अलग मत करो, ठीक है? प्लीज सर, कोई माइक पकड़ो ना यार, यहाँ पे आप लोग सिर्फ अपने चैनल के लिए ऐसे मत करो यार, टीम के हिसाब से काम करो। दिल्ली जाके देख के आइए कैसे काम करो। हुमा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस था कवर शूट करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा पहला कवर है सिनेब्लिट्स के साथ और बहुत ही अच्छा निकल के आया है और मुन्ना ने शूट किया है और बहुत ही कम टाइम में हम लोग ने प्लान किया, डिसाइड किया और केवल 4 घंटे में ना कि कवर बल्कि बाकी इनसाइड की सारी पिक्चर्स भी निकाल दी। एंड इट्स बट आई हैव टू से कि कम टाइम का मतलब ये नहीं था कि कोई कमी रह गई। आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू सिनेब्लिट्स, द एंटायर टीम एंड मुन्ना फॉर दिस कवर। कवर के ऊपर लिखा है आई फाइनली सी मोर लव एंड एक्सेप्टेंस, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मुझसे सवाल पूछा गया था कि इस साल में आपने क्या नई सीख क्या मिली, आपको क्या नए एक्सपीरियंसेस आए। तो मैंने यही कहा कि शायद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे और ज़्यादा प्यार मिलता जा रहा है और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है। मतलब जब नए नए आते हैं तो सब लोग आपके बारे में, एंड आप इंडस्ट्री से नहीं होते हैं तो हर तरह के बातें करते हैं या जज करने की कोशिश करते हैं। आई फील फाइनली पीपल हैव जस्ट एक्सेप्टेड मी एंड दे स्टार्ट लविंग मी इवन मोर, सो आई एम जस्ट फीलिंग दैट। सो आई थिंक उसमें से जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि आपको एक अवार्ड मिला है सपोर्टिंग एक्टर का, तो 2015 में अवार्ड की वजह से कोई फ़ायदा हुआ है आपको, कोई ज़्यादा फिल्में मिली है? आई थिंक अवार्ड रिवॉर्ड दोनों से फ़ायदे होते हैं। अवार्ड मैंने जैसे कि उस आंसर में भी कहा कि इट्स अ गुड वे कि एक इंडस्ट्री एक दूसरे को बोलती है, अप्रिशिएट करती है कि आपने अच्छा काम किया, तो एक अवार्ड मिलके अच्छा लगता है। मेरे बुक शेल्फ पे भी जब मैं लगाती हूँ तो वो बाकी अवार्ड्स के साथ उसने ज्वाइन कर लिया है। एंड एक जिस फिल्म के लिए मुझे अवार्ड मिला वो बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, 1.5 इश्किया। और आई एम ग्लैड कि जबकि वो फिल्म पिछले जनवरी रिलीज़ हुई थी, अब तक लोगों को उसके बारे में लोगों के जहन में वो फिल्म अभी भी है, वो कैरेक्टर अभी भी है। एक एक्टर बहुत मेहनत करता है हर रोल के लिए, तो अच्छा लगता है जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छा, 2015 आपको वरुण धवन के साथ काम करने पे कैसा लगा? वरुण धवन आई थिंक द नेक्स्ट सुपरस्टार है रियली। वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। वो मतलब मुझे फुल उम्मीद है कि और बड़े बड़े होते जाएंगे विद एवरी फिल्म, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो अपने काम को लेके 24 घंटे सोचते रहते हैं और आइडियाज़ लगाते रहते हैं और सीन अच्छा कैसा हो और फिल्म की मार्केटिंग कैसी हो और जस्ट अबाउट एवरीथिंग। एंड ही इज़ सो पैशनेट अबाउट हिज करियर। आई थिंक इट्स रियली लवली। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है उनसे इस फिल्म में। कोई बात जो सबसे खास आपको लगी? वरुण की एक बात, वो बहुत खुश रहते हैं जब वो सेट पे आते हैं, जबकि ही इज़ क्वाइट पॉपुलर विद बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग। वो सेट पे आते हैं तो हर किसी से मिलते हैं, फ्रॉम द सेट बॉय टू द लाइट बॉय टू ऑल द एक्टर टू डायरेक्टर टू DOP, सबसे जाके गले मिलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। एंड वो जैसी सेट पे आते हैं बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है, बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़्यादा मतलब एक खुशी बांटते हैं। तो सेट पे कोई ऐसा इंसान जब आए तो मतलब सबको काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 2015 की बात है। मेरे रेजोल्यूशन बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ कभी हो नहीं पाते, तो मैंने सोचा है कि बिना बनाए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 2015 में बहुत बिजी स्केड्यूल लग रहा है आपका, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है 2015? फिलहाल तो जस्ट बदलापुर, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बदलापुर और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। मैंने पहले भी कहा, मेरे कंफर्ट जोन के बाहर की फिल्म है, तो आई एम रियली होपिंग कि ऑडियंस को हमारी फिल्म पसंद है, क्योंकि एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अभी फिलहाल तो Feb 20 को बदलापुर रिलीज होगी, तो उसके लिए अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है। हुमा, एक बताइए, वर्ल्ड कप की टीम रेडी हो गई है, खेलने जा रही है, तो कोई फेवरेट खिलाड़ी है जिसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? लेट्स कीप इट सिनेब्लिट्स, लेट्स कीप इट मूवीज टुडे। नहीं, मुझे तो लेके जा नहीं रहे। 2015 में बदलापुर के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट के साथ हम आपको फिलहाल आई ओनली वांट टू डिस्कस बदलापुर। जब ऐसे मौका होगा आई एम श्योर वी विल डिस्कस दैट। या थैंक यू सो मच। पहले बोला